Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah and doing good. And today we will start our lesson number 3, media and its impact. Before starting the lesson, I will explain the importance of media, that nowadays media plays a very key role in our society. In some cases, media spreads false news also. Mobile phones, TV and internet are major means of communication. We can say that it's need of the hour and every person is in touch with it, and media has become compulsory part of our life. Okay students, now we will start reading of this chapter. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. The students eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. Shall we start? She asks politely. Yes, the students nod. Now we will move towards explanation of this paragraph, that Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. And in this paragraph we are told about the tutorial day of class 9th and students are ready for it. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th, यानी मिस आयशा जमात नहम की पसंदीदा उस्तानी हैं या टीचर हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, यानी तलबात उनकी क्लास को शौक से लेती हैं. मिस आयशा इंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल. मिस आयशा कमरा जमात में अपनी मामूल की मुस्कुराहट लिए दाखिल होती हैं. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबात से मिलती हैं या खुशामदीद कहती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, रोल कॉल मीन्स अटेंडेंस, और हाजिरी लेती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका बहसो मुबाहसा का दिन है. ट्यूटोरियल डे, अ डे ऑफ डिस्कशन. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. गियर्ड अप मीन टू गेट रेडी, यानी तमाम तलबात इसके लिए तैयार हैं. दे नो व्हाट इज अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो किस लिए तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं. यस, द स्टूडेंट्स नोड, जी हाँ, तलबात मस्बत में सर हिलाती हैं. नोड मीन टू गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स while moving your head. We have a question in the side box. Guess the meaning of tutorial. यानी tutorial का क्या मतलब है? Tutorial is the method of teaching in which students are involved properly in the discussion. Students, actually this chapter is a conversation between teacher and students in the class. So let's start with reading. Teacher, okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree? Students, yes, we do. So let's move to explanation. Teacher, okay, as we have decided earlier. टीचर अपने स्टूडेंट्स से कहती हैं कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं. द टॉपिक फॉर द टूडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी आज की बहस का उन्वान है द रोल ऑफ मीडिया, यानी मीडिया का किरदार, एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसके असरात. टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे इब्तदा में ये वाज़िया कर लेने दें, दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. मोड मीन ज़रिया, कम्युनिकेशन मुवासलात का, यानी मुझे इब्तदा में ये वाज़िया कर लेने दें कि मीडिया मुवासलात का एक ताकतवर ज़रिया है. इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, ये लोगों में ख़बरें एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात, यानी न्यूज़, ख़बरें, इंफॉर्मेशन, मालूमात, विद द पीपल, लोगों से, यानी ये लोगों से खबरों और मालूमात का तबादला करता है. समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स मीन फैलाता है, फॉल्स न्यूज़, गलत खबरें. बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर यह हमारे इर्द गिर्द हमें हकाइक से आगाह करता है. फैक्ट्स मीन हकाइक. डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफिक हैं? स्टूडेंट्स, तालिबात, यस वी डू, जी हाँ, हम मुत्तफिक हैं. So I am going to sum up this paragraph.
In this paragraph, we are told about media that it is the most powerful mode of communication and it gives information about what is happening around us. So students, you can see that we have a question. What type of information does media provide? यानी मीडिया किस किस्म की मालूमात मुहैया करता है? तो the answer can be media provides information on every aspect of the life, including sports, health, educational, about fashion, current affair, entertainment, etc. Student 1, I would like to add a bit more to it. Teacher, yes, sure. Student 1, media helps people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. Moving on the next page. Student 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. Let's move to explanation. I have to explain it for you. Student 1, I would like to add a bit more to it. यानी तलबा नंबर 1 यानी जो पहली स्टूडेंट हैं वो क्या कहती हैं कि मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी. ऐड इजाफा करना चाहूँगी. बिट थोड़ा सा यानी मैं इसमें मामूली इजाफा करना चाहूँगी. टीचर उस्तानी या टीचर, यस श्योर, जी हाँ यकीनन. स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मीडिया दुनिया के इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, फीलिंग्स मीन जज्बात, ओपिनियंस आरा मतलब राय की जमा. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट यानी उनके जज्बात और उनकी आरा इसके जरिए जाहिर होती हैं या उनकी आरा या जज्बात का इजहार इसके जरिए किया जाता है. किसके जरिए? मीडिया के जरिए. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. अट्रैक्ट्स मीन मबजूल करना या अपनी तरफ खींचना. द अटेंशन तवज्जो ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस यानी सामीन की एक बड़ी तादाद. यानी मीडिया सामीन की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींचता है. हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोट किया है या क्या आपने देखा है? दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस यानी हम घर दाखिल होते ही पहला काम इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन यानी टीवी ऑन करते हैं. यानी घर में दाखिल होते ही हम सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं या टीवी चलाते हैं. टीचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उस्तानी, इसमें कोई शक नहीं. स्टूडेंट 2, लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम. स्टूडेंट 2 क्या कहती हैं कि लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ यानी मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है यानी एक लाजमी जुज़ बन चुका है. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये सिर्फ ना हमें मालूमात मुहैया करता है, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, ये हमें लुत्फानंदोज भी करता है. आई हैव टू सम अप दिस पैराग्राफ इन सिंपल इंग्लिश that in this conversation it is told us that media attracts the attention of the world and we have become addict of media. It has become part of our life which entertains us. We will start next paragraph. Teacher, absolutely right. Well, do you have any idea about the two major means of communication? Student 3, there are two means of communication, electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. It provides us information as well as entertainment. Now I am going to explain it. Teacher, absolutely right. बिल्कुल ठीक कहा. Well, बहुत खूब. Do you have any idea about the two major means of communication? मेजर बड़े means of communication ज़राए मुवासलात यानी मुवासलात के दो बड़े ज़राए. बिल्कुल ठीक कहा. क्या आपको मुवासलात के दो बड़े ज़राए के बारे में कुछ इल्म है? स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मुवासलात के दो बड़े ज़राए हैं यानी दो ज़राए मुवासलात हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और अशाती मीडिया. यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एंड प्रिंट मीडिया. और प्रिंट मीडिया में कौन सी चीज़ें आती हैं? यानी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर.
The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspaper. यानी मीडिया में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात वगैरह. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट. यानी ये जिस तरह हमें मालूमात मुहैया करता है उसी तरह हमें लुत्फानंदोज भी करता है, यानी अपने टॉक शोज वगैरह के जरिए या इसी किस्म के जो शोज होते हैं, इंटरटेनमेंट शोज होते हैं, उनके जरिए. Now I have to sum up this paragraph for you. In this paragraph, teacher asks the students about two major means of communication, and student number 3 replies that there are two major means of communication: electronic media and print media. See the next paragraph. Teacher, good, it's through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. Teacher, good, बहुत खूब या बहुत अच्छे, it's through media that the world has become a global village. Global village एक अलमगीर गांव, यानी मीडिया के जरिए दुनिया एक अलमगीर गांव बन चुकी है. देयर इज कवरेज, कवरेज मीन खबर साजी करना, ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, तमाम अहम वाकयात की, ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन, दुनिया में होने वाले तमाम वाकयात. यानी मीडिया जो है वो दुनिया में होने वाले तमाम अहम वाकयात की टेलीविजन पर खबर साजी करता है. वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, और मीडिया के ज़रिए हम हर किस्म की मालूमात तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. एक्सेस मीन रसाई, इंफॉर्मेशन मालूमात, थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए. एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इज दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड वी कैन हैव ईजी एक्सेस एंड सी एनीथिंग विच वी वांट. Okay students, we have to move to next point. Student 4, can we say that the world is just a click away? Teacher, maybe. Well, would any other student like to say something on it? Miss Aisha points to the student sitting at the end. Student 5, Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. Teacher, yes, you are right. Okay students, now we have to move towards explanation of this paragraph. Student 4, can we say that the world is just a click away? यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक के फासले पे है या एक बटन के फासले पे है? एक क्लिक के फासले पे होने से मुराद ये है कि जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं या टेलीविजन ऑन करते हैं तो आप हर किस्म की मालूमात तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. टीचर, मे बी, शायद. वेल, बहुत खूब कहा. वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या आप में से कोई और तालिबा इसके बारे में कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा आखिर में बैठी हुई एक तालिबा की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं. स्टूडेंट 5, मैडम, इन माई ओपिनियन, मैडम मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. कंस्ट्रक्टिव रोल मीन तामीराती किरदार अदा करना, यानी पॉजिटिव रोल. फॉर द सोसाइटी, माशरे के लिए. मैडम मेरी राय में मीडिया माशरे के लिए एक तामीरी किरदार अदा करता है. इट रेजेज, पैदा करता है या उभारता है, अवेयरनेस, आगाही को, अबाउट मैनी सोशल इशूज, कई समाजी मसाइल, लाइक करप्शन जैसे कि बदउनवानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन नशे की लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. वायलेशन मीन खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की. यानी ये हम में बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और कई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जैसे मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है. टीचर, यस, यू आर राइट. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा. Okay students, we have to sum up this paragraph, and the main point in this paragraph is that the main role of media, that it makes us alert about many social issues which can be known only through it. Student number 6, media has also become a mouthpiece of the downtrodden. Teacher, yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society through debates, reports and talk shows.
It makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now I would invite one of you to sum up the discussion. Students, we have to move towards explanation of this paragraph. Student number 6. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. Mouthpiece की तरफ से बोली जाने वाली आवाज़. Downtrodden मजलूम तबका यानी निचला तबका, गरीब लोग, यानी मीडिया मजलूम लोगों की तरफ से बोली जाने वाली एक आवाज़ बन चुका है. टीचर, यस वेल सेड, जी हाँ आपने ठीक कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा. दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट. विजिलेंट मीन चौकन्ना, इंस्टीट्यूशन, इदारा दैट कीप्स एन आई. कीप्स एन आई इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स कड़ी नजर रखना. ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, माशरे के हर पहलू पर या हर तबके पर, यानी मीडिया एक इंतहाई चौकन्ना इदारा है जो माशरे के हर पहलू पर या हर तबके पर कड़ी नजर रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, यानी तकारीर, रिपोर्ट और टॉक शो के जरिए. इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर एक को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है. दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. इंटेग्रल पार्ट मीन लाजमी जुज, यानी एक अहम हिस्सा बन चुका है. पार्ट एंड पार्सल, यानी यही वजह है कि मीडिया हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है. नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन. अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि इस बहस को समेटे या इसका इख्तिताम करें. In this paragraph, we are told about the main role of media, that media has become the voice of poor people, and these are the reasons that media has become part and parcel of our lives. Okay students, you have a question in your side box. Which is your favorite TV program? Why? And this is your self-assessment and you have to write this answer in your own words, that which is your favorite TV program and why do you like it. And now you have to turn over the page. Student 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in the discussion and have expressed yourself very well. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. Student 1, I would conclude the discussion. मैं ये कह के बहस को समेटना चाहूँगी by saying that media can plays, यानी मैं ये कह के इस बहस को समेटना चाहूँगी कि मीडिया एक इंतहाई मस्बत और तामीराती किरदार अदा कर सकता है, मस्बत किरदार अदा कर सकता है. इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, और अगर ये अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे. टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा इख्तिताम हुआ. आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल. और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब इस बहस में शामिल हुए या आपने इस बहस में हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय का इजहार किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया, जाहिर किया. द बेल रिंग्स, घंटी बजती है. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं और चली जाती हैं. As Miss Aisha has wind up the topic and we also have to sum up the lesson. Students, in this lesson we learnt about media, that how media affects our lives. Sometimes it plays negative role, but mostly it tells about many facts and issues which can be seen in our society. It is because of media that we can get information about the world. It updates our knowledge that what is happening around us. Students, we have already discussed the chapter in detail and now we have moved towards question answer, and first of all we will solve unit related question answers. Question number 1, guess the meaning of tutorial. यानी tutorial का meaning क्या है, क्या इसका मतलब है. Tutorial means group discussion. Tutorial is the method of teaching in the class which involves the students in the discussion properly. यानी ये एक टीचिंग का ऐसा मेथड है जिसमें क्लास को या स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड. यानी मीडिया किस किस्म की मालूमात देता है. मीडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग हेल्थ, स्पोर्ट्स, फैशन, करंट अफेयर एंड एंटरटेनमेंट एटसेट्रा. यानी मीडिया हमें हर किस्म की मालूमात देता है, इसमें सेहत भी शामिल है, खेलें, फैशन
और जदीद मामलात शामिल है, और इंटरटेनमेंट एटसेट्रा मतलब हमें इसी तरह लुत्फानंदोज भी करता है, यानी ऐसे प्रोग्राम देता है हमें जिससे हम लुत्फानंदोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वाई? नाउ यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड फॉर एग्जाम्पल आई हैव आंसर फॉर यू। I like बज़्म तारिक अजीज because it provides information as well as entertainment to its audience, यानी ये अपने सामीन को जैसे मालूमात मुहैया करता है उसी तरह लुत्फानंदोज भी करता है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, यानी कौन सा ऐसा किरदार है, सबसे अहम किरदार है जो मीडिया अदा करता है। मीडिया रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी important issues, you can say social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. Media has also become the mouthpiece of the downtrodden, यानी मीडिया हमारे लिए जो है वो आगाही पैदा करता है किस चीज़ में, जो मुआशरे में मसाइल हैं यानी समाजी मसाइल हैं जैसे बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी वगैरह, और ये निचले तबके की तरफ से यानी मजलूमों की तरफ से बोली जाने वाली एक आवाज़ बन चुका है। Question number 2, what are the two major means of communication? Give 3 examples of each. Answer, two major means of communication are electronic media and print media, यानी बरकी मीडिया और इशाती मीडिया। Electronic media includes radio, TV, internet and print media includes books, magazines and newspaper, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, टीवी, इंटरनेट और रेडियो वगैरह, और प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर यानी अखबारात, रिसाले और किताबें वगैरह। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड entertainment? Media provides entertainment in various forms such as news, dramas, films, talk shows, current affairs, music shows and documentary programs. It gives pleasure and entertainment to its audience, यानी जो मीडिया है वो कैसे इंटरटेनमेंट हमें मतलब लुत्फानंदोज कैसे करता है, अपने ड्रामों के ज़रिए, ख़बरें हमें दे के, फिल्म्स वगैरह के ज़रिए, टॉक शोज़ और जदीद मामलात पर शोज़ करके और म्यूज़िक शोज़ वगैरह से हमें लुत्फानंदोज करता है। और इसी तरह हमें जिस तरीके से ये हमें लुत्फानंदोज करता है उसी तरह ये अपने ऑडियंस को एक खुशी भी मुहैया करता है या इंफॉर्मेशन भी देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड? When media is allowed to play its role unchecked, it may spread false news which is very harmful for a stable government. Moreover, selfish and business-minded people may exploit the common message dishonestly. Exploit mean इस्तेसाल करना, मतलब गरीबों का हक मारना, यानी क्या है कि जब मीडिया को इसी तरह छोड़ दिया जाए, उसको अनचेक छोड़ा जाए, तो ये गलत खबरें फैलाना शुरू कर देता है जो कि एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन अ लॉट एंड लर्न अबाउट मीडिया एंड इट्स रोल। स्टे हैप्पी एंड सेफ। अल्लाह हाफिज़।